So start. Good morning, everyone. So welcome Good to morning. online learning. So we have to study about tax. So Modi is asking you, to the normal people, that are you ready to pay the tax? So we have studied that there are two types of tax: direct tax and indirect tax. What do you mean by direct tax? Which is directly depend on your income. Income. Yes, and the second one is indirect tax, that is indirectly depend on your income. So you have to pay indirectly tax. So we have to study indirect tax, that ultimately burdens of payment which comes to the person who are earning the income, but the responsibility to pay the tax, it comes to supplier. That you can see over here. We have to study about GST. ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा, वो हम लोग ने डायरेक्ट टैक्स में देखा था. जैसे जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, एंड रेट्स आर फ्लैट एंड फिक्स्ड इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. So next is GST, goods and services tax. GST stands for goods and services tax. Services tax. Yes. Good. GST tax is the revenue income for the government. Just fill the Government. fast. Yes. Goods and services tax is applicable to dash. Whole of Whole of India. India. Also Yes. Jammu and Kashmir. Yes. GST based on dash. Consumption. Based on consumption, changes to Changes production. from production. Change Yes. from production. Yes. One dash, one dash. One tax. Yes. One nation, one. One tax. GST is regulated by dash. Central Board of CBC. Excise Customs. CBC, Central Board of Excise. Yes. CBEC, Central Board of Excise and Customs. Excise and custom. GST dash and dash. GST dash and dash, dual levy and Dual levy and concurrent power. Concurrent power. Yes. GST dual levy and concurrent power. What do you mean by concurrent power? power State and central government. Have same rights. Okay. same rights. GST has replaced the dash. Indirect tax. Indirect. Okay. Effective dates of GST is? 1st July 1st July 2017. 2017. Okay. GST eliminates the? Cascading Cascading effect. effect. Okay. What do you mean by cascading effects? Double tax on taxation. tax. Double Yes. taxation. Yes, tax on tax or double taxation. We have seen the global scenario of GST. So just fill the dash was the first country implement GST. France. Okay. In the year? 1954. 1954. Okay. More than? 160 countries have 160 already. countries. Yes, already applied that. And India's the numbers is? 161. 161. Okay. Dash rate system? Single rate system. Single rate. Okay. India has chosen the dash of dual GST? Canadian model. Canadian model. Okay. Some country having dual GST model, example? Brazil and Canada. France. Canada. Okay. Standard rate GST rates in most of countries are? 15 to 15 to 20%. 20%. Okay. So this is the journey of GST. Okay. So in the year 2000, the Atal Bihari Vajpayee government started the discussions on GST. And P.G. Chidambaram said that GST will be introduced from 1st for 2010. जो हुआ नहीं है, आप लोगों को पता है. The next is that Kamal Fool, that is BJP का sign, and the GST bill. What do you mean by bill in tax? Pro forma. Yes, it's an invoice, like you can say that it's a rough work, huh? Probably. So Rough BJP invoice for approval. Yes. So BJP government has introduced like GST bill, and they got the approval also in the year 2014 by Arun Jaitley. 14. Yes.
And they got the approval from both the houses. Which houses? Rajya Sabha, Lok Sabha. Lok Sabha and Rajya Sabha. Yes. Rajya Lok Sabha Sabha and- and- Okay. So this is the Parliament. Parliament Parliament House. Parliament House, Lok Sabha and Rajya Sabha. So this is the Lok Sabha and Rajya Sabha, House of a Parliament, lower house of people, effective. See, this is the elective basis, huh? Lok Sabha is elective basis and Rajya Sabha is selective basis. Permanent body. Yes, permanent body and temporary body. Like not temporary, it's like for 5 years. So we have discussed about that green color and red color also. So this was the first counseling meeting on September 2016. And in March 2017, they recommended that CGST, SGST, IGST, UTGST and compensation to state act लाना चाहिए ऐसा बोला वो लोग ने. Yes. And they got approval, they act pass. वो लोग ने रिकमेंडेड किया, फिर एक्ट पास हो गया, फिर जीएसटी का हम लोग ने वेलकम भी किया था. सो इन जीएसटी देयर जो पास हुआ है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी. IGST. यस. सो 1 जुलाई 2017 को हम लोग ने इसका वेलकम किया था. सो जीएसटी एक्ट आया 2017. तो जीएसटी का एक्ट. यस. सो यहाँ पे हम लोग ने उसके बाद कंटेंट्स देखे थे कि इन द टॉपिक्स मुझे ये सब कवर अप करने हैं आपको जीएसटी में. तो हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर अप कर लिया है. टॉपिक हो चुका है हमारा. सप्लाई का टॉपिक खत्म हो चुका है. सो हम लोग ने थर्ड टॉपिक स्टार्ट किया था कंपोजिशन स्कीम का. सो विल सी दैट आल्सो. यस. ठीक है. उसके बाद रिवर्स चार्ज भी देखेंगे हम लोग, आज ही देखेंगे वो भी. आरसीएम जो है वो. ओके ओके. Yes. Components and chargeability of GST. What is that? CGST, SGST. Yes. हाँ वही. CGST, SGST and IGST. CGST stands IGST. for Central Goods and Services Tax. Services tax. SGST is State Goods and Services and IGST is Integrated इंटीग्रेटेड. Goods and हाँ, Services. यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, इंटरस्टेट बोलते हैं. ये इंटरस्टेट नहीं है, ये इंटीग्रेटेड है. IGST is collected by Both state, central Yes. and state. no. IGST is collected by central, then central will share to state. Central. Okay, ठीक है. हाँ. Next. So next is supply of goods and services. If intra-state movement, CGST, SGST will charge, and if interstate movement, IGST will be charged. Like अगर within the state अगर आप लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो CGST और SGST. अगर आप लोग इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जैसे कि स्टेट चेंज होता है तो IGST आएगा. क्लियर. जैसे वो मैंने आपको कंपटीशन बताया था, इंटर स्कूल कंपटीशन या फिर इंट्रा स्कूल. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल हम लोग ने लिया हुआ है. 2 एग्जाम्पल है. इंट्रा स्टेट रहेगा तो CGST, SGST चार्ज किया हुआ है एंड इंटर स्टेट इज Yeah. IGST चार्ज किया है लोगों ने. इंटर स्टेट I- रहेगा तो. और ये जो हम लोग ने यहाँ पे 10% का एग्जाम्पल लिया है, जस्ट एग्जाम्पल. इन GST देयर इज नो 10%, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके. रेट्स हम लोग देखेंगे लेकिन 10% तो नहीं है. ये जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल्स. ओके. नेक्स्ट इज दिस इज अ पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, ऑयल वगैरह जो है, नेचुरल गैस वगैरह है, अल्कोहल, ये सब जीएसटी इस पे नहीं लग रहा है. ओके. आई हैव गिव यू द एग्जांपल, लाइक बताया भी था मैंने, रीजन भी दिया था आपको क्यों जीएसटी से बाहर है ये सब. ये सब पे भी जीएसटी नहीं लग रहा है तो कुछ ना कुछ लग रहा होगा. जैसे अल्कोहल State पे approval नहीं जीएसटी हो नहीं लग रही है, स्टेट अप्रूवल नहीं हो पा रहा है. तो अल्कोहल वगैरह पे वैट वगैरह लग रहा है. हाँ बोलो ना. मैम इस सब पे वाला वेट लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है तो. हाँ वही, मतलब कुछ ना कुछ तो लग रहा है. जीएसटी के प्रीव्यू से आउट है ये. अगर आप अल्कोहल वगैरह पे जाते हो तो वैट वगैरह लगेगा, अगर स्टेट से वगैरह ले रहे हो तो कुछ ना कुछ तो लग ही रहा है. बाकी अगर मैम अगर हाँ, चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्या बोल रहे उस हो, पे आवाज वैट नहीं आ लग- रहा है. इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तो मैम नहीं फिलहाल उस पर भी नहीं लग रहा है, उस पर भी नहीं लग रहा है. बट अभी फिलहाल के लिए बोला होगा, शायद से अप्रूवल मिल गया है उसका, शायद तो लगना स्टार्ट होगा. बिल पे चेक करना पड़ेगा. पहले नहीं था, उसके ऊपर भी अप्रूवल नहीं मिल अभी रहा था. फिलहाल तो वैट ही है मैम. हाँ तो फिर नहीं हुआ है अभी तक. तो चल रहा है अप्रूव, उसके ऊपर मगजमारी चल रही है वो लोग की. तो अभी होगा क्या पता. देखो आएगा, ऐसा पता चल जाएगा अगर कुछ हुआ रहेगा तो. चेंजेस तो होता ही रहता है कुछ ना कुछ. सो नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे सप्लाई पढ़ना है. हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है.
Second topic is supply. So GST is the tax on supply of goods and services or both. Services. Yes. अगर आपको किसी को सप्लाई बोलना है तो यहाँ पे 2 कंडीशंस है, फुलफिल होना चाहिए. There should be a consideration written in something and used in the course of furtherance of business. If no supply, no condition. No GST. Sorry. No supply, so no GST. So we'll see the meaning of supply. So supply includes section 7. There is a 2 things: supply of goods and services with consideration and without consideration. Without consideration. Yes. So supply of goods and services without consideration is a schedule 1, and supply of goods and services with consideration is schedule 3. Right now? Yes. ओके. सो विद कंसिडरेशन में अगर आप लोग कुछ सामान लेते हो तो उसके सामान बेचते हो तो उसके बदले आपको कैश वगैरह कुछ मिलेगा, कंसिडर होगा, कैश होगा या काइंड होगा, कुछ ना कुछ तो होगा. लेकिन सेकंड चीज विदाउट कंसिडरेशन बोला है, अगर आप सामान बेच रहे हो उसके बदले आपको कुछ नहीं आ रहा है. ओके, हम लोग देख रहे हैं उसका इंक्लूड्स का पार्ट. विद कंसिडरेशन के अंदर 2 पार्ट है. ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन A. So there is a sale, barter, exchange, transfer, Barter, lease, exchange. yes, rent and disposal, something. Okay. And second चीज आपको जो पढ़ना था, that is import of services. Import of services. Yes, so import of services for a consideration, section 7 A B part है. A part is all form of supply. Second part is import of services for a consideration. Okay, so next we'll see exchange, barter, license, rent, lease, disposal. ये सब all form of such a supply वगैरह वहाँ पे goods and services का A part है. उसके बाद हम लोग को यहाँ पे second देखना था made and agree to be made. Contract sign हुआ है यहाँ पे. I give you the example of mobile. दिवाली आ रहा है, मोबाइल देना है. ओके, यहाँ पे जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, बीच में लॉकडाउन आ गया तो वो लोग नहीं दे पाए मोबाइल. सो एग्री हो गया, अब तुम्हारे नाम से बिल बन गया. क्या बोल रहे हो मैम? ये विद कंसिडरेशन वाला एग्जांपल्स है ना? हाँ, ये सब विद कंसिडरेशन के अंदर ही है. हाँ आपने प्रॉपर चार्ट बनाया है ना, जिससे बोला था. मैम, ये चार्ट मैम जैसा चार्ट बनाया आपने वो दिया था, वो वाला चार्ट बनाया है. इमेजेस याद नहीं आ रहे थे. ओके, ऐसे जैसे मैंने मतलब मैंने वो एक दिन व्हाट्सएप किया था ना, किसने किया था व्हाट्सएप? प्राजक्ता ने किया था शायद से, आई डोंट नो नेम, शायद से. तो मतलब उन्होंने भेजा था ना, उन्होंने बराबर बनाया था, वैसे ही बनाना है आपको चार्ट. हाँ, ओके, तो चार्ट वैसे ही बनाना है आपको. सो वही चीजें विद कंसिडरेशन के हम लोग के अंदर फर्स्ट पॉइंट था ऑल विद गुड्स एंड सर्विसेज वाला. सेकंड ये है मेड और एग्री टू बी मेड. थर्ड है फॉर अ कंसिडरेशन, एंड उसमें भी फर्स्ट इज मॉनेटरी वैल्यू. नॉन कॉम्पिट फीस इसको बोला गया है, कुछ नहीं करने का भी पैसा आपको मिल रहा है, दैट इज नॉन कॉम्पिट फीस. एंड ये इंड्यूसमेंट, like you do something for me, I'll do that for you, something like that. Monetary benefit, you can do that. Okay. Yes. So in this situation GST हम लोग को पे करना है गवर्नमेंट को. हम ऐसा नहीं बोल सकते मैंने उसके बिहाफ पे काम किया. एंड द फोर्थ वन इज विद कंसिडरेशन का फोर्थ पॉइंट है ये, इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस. आप बिजनेस कोई भी टाइप का करो, एनी ट्रेडिंग, कॉमर्स, प्रोफेशन, वोकेशन, और प्रॉफिट कमाने के लिए करो या फिर आप ऐसे ही कर रहे हो सोशल वर्क, जो भी है हम लोग को तो यहाँ पे जीएसटी पे करना ही पड़ेगा. क्लियर हुआ ये? आप ऐसा नहीं बोल सकते आपका बिजनेस छोटा है, बड़ा है, साइज यहाँ पे मैटर नहीं करता, वॉल्यूम. लाइक ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरी बिजनेस छोटी है यार, मेरा बिजनेस यहाँ पे है, ये एरिया में आता है, मैं जीएसटी नहीं पे करूंगा, समथिंग ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे. आप ऐसा कुछ रीजन नहीं दे सकते हो. बिजनेस बढ़ाने के लिए आप कुछ भी कर रहे हो, आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. लाइक बिकॉज ये क्लब होता है, सोसाइटी, एसोसिएशंस ऑफ इट्स मेंबर्स के लिए जो होता है, ये सब भी प्रॉफिट मोटिव ही है. तो ये सब सिचुएशन में आपको क्या करना है, जीएसटी लगेगा. एनी एक्टिविटी इंसिडेंटल और एंसिलरी, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरे को ये तो अचानक से हुआ, ये तो मेरे सिचुएशन में आ ही नहीं रहा था, सिचुएशन अचानक से क्रिएट हुआ, तो आई विल नॉट पे जीएसटी. ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप. जैसे उस दिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये परचेज बुक कर रहा है,
बुक परचेज। तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उसको अचानक से लगा, ठीक है। फिर ये एंसिलरीज, दैट इज सपोर्टिव आइटम, तो इसके साथ आएगा ही आपको, अलग से आप उसके ऊपर पे करके जीएसटी नहीं पे करने का, ये उसके साथ आने वाला ही है। ओके, सो नेक्स्ट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन का चार्ट है, इंक्लूड्स के अंदर सेकंड पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन। सो फर्स्ट पॉइंट इज परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। जैसे आपको मैंने बताया था, कोई भी बिजनेस का एसेट है, अगर आपने ट्रांसफर कर दिया उसको, फ्री में दिया या किसी को भी आपने, और उसके बदले आपको कुछ भी कंसीडर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे जीएसटी पे करना है, तो भी पे करना पड़ेगा। कोई बिजनेस एसेट की बात कर रही हूँ, घर का फर्नीचर वगैरह नहीं बात कर रही, बिजनेस की बात चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने सप्लाई क्या रिलेटेड पर्सन को दिया है क्या, या तो आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को दिया है क्या। रिलेटेड पर्सन मतलब क्या, आप बोल सकते हो यहाँ पे आपने कोई लाइक बहन वगैरह को दिया है क्या, रिलेशन में किसी को कुछ दिया है क्या, क्योंकि रिलेशन में हम लोग सेम प्राइस नहीं लेते ना, रिलेशन बीच में आया तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो देते हैं। सो डिस्काउंट आप लोग रिलेटिव को दोगे तो उसमें गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर ऐसा कुछ सप्लाई आप कर रहे हो रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, तो भी जीएसटी लगेगा। हो सकता है आप रिलेटिव से पैसे ही नहीं लो, फ्री में दे दो आप उसको, तो हमारा नुकसान मत करो आप, हमको तो टैक्स लगेगा ही, आप भले उसको फ्री में दे रहे हैं, अब हमको टैक्स दे दो। सो रिलेटेड पर्सन इज सेम स्टेट और डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स इंटर स्टेट, एक मैं आपको बताया था ये भी चीजें। फिर अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है 50,000 के ऊपर, तो उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। अगर उसने गिफ्ट कैश में दिया है तो ठीक है, चलो समझ में आता है 50,000 के ऊपर है, लेकिन अगर उसने आपको, ठीक है चलो कोई काइंड में अगर आपको गिफ्ट दिया, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द वैल्यू, वैल्यू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आपको उसको कैलकुलेशन करके। अगर फिर आपको पता चलेगा कि 50,000 के ऊपर है, तो उसको सप्लाई ट्रीट करके आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना होगा। यस। फिर नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और वाइस वर्सा, आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसी के बिहाफ पे अगर आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो उसका बिजनेस है, मैं मेरे को यहाँ पे बैठा के गया है वो, तो मैं जीएसटी नहीं पे करूंगा, मैं सिर्फ सामान बेचता रहूंगा। तो फिर सब लोग ऐसे ही करेंगे ना, बिजनेस लाइक ओपन कर देंगे और बैठा देंगे किसी को भी, अगर ऐसे में जीएसटी नहीं पे करना रहा तो ऐसा नहीं होता यहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट ने वो भी रूल बीच में डाल दिया है कि अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हो, प्रिंसिपल एजेंट को किसी को भी बैठा दिया बिजनेस में, तो भी जीएसटी हमको पे करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो मेरे फ्रेंड का जो दुबई में है, जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, उससे मैंने इंटीरियर का इंटीरियर का लाइक लिया था सर्विस, और मुझे पे करना था। अभी ये सिचुएशन में वो मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे पैसे लिए ही नहीं, तो अभी ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आपने इंडिया से सर्विस लिया होता तो आप पैसे देते ना, पैसे देते तो मुझे भी जीएसटी मिलता। एग्जैक्टली सेम पॉइंट यहाँ पे, इसके लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे डाल दिया है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन आउटसाइड इंडिया प्लस एफओबी होना चाहिए, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। जैसे फिर मैंने यहाँ पे आपको बोला कि हाँ मेरा इंटीरियर करा लेते हैं, यहाँ पे मैं अपना सलून खोल दूँ, ओपन कर दें हम, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा फर्दरनेस ऑफ बिजनेस हो गया, मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मतलब सामने वाला मेरा रिलेशन में है, तो टैक्सेबल ने रिलेटेड से लिया, बाहर से लिया, प्लस फर्दरनेस ऑफ बिजनेस भी है, कंसिडरेशन नहीं हो रहा है तो भी टैक्स पे करो। क्लियर हो गया ये। फिर नेक्स्ट था सप्लाई एक्सक्लूड नेगेटिव लिस्ट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इज जीएसटी ऑन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। सो सर्विस बाय एम्प्लॉय एंड टू एम्प्लॉयर लाइक इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है मेरा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसका 9 to 5 का बिजनेस है, लाइक जॉब पे है, अगर वो 9 to 5, तो उसको नॉर्मल सैलरी मिल रहा है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, कोर्स ऑफ पेमेंट में उसको सैलरी भी मिल रही है, ओके। बट वो सोच रहा है कि आफ्टर 5 मैं फ्री हूँ, मेरे को नींद तो 12 बजे के पहले आने वाला नहीं है, तो कुछ और भी काम करते छोटा मोटा। तो हो सकता है उसने बाजू में राशन की दुकान थी, वहाँ पे बहुत लाइन लगती है शाम को, तो वहाँ पे थोड़ा सा अकाउंटिंग का काम है या फिर कैलकुलेशन का, कैश का कुछ काउंटिंग का काम है, वो उसने कर लिया। अभी वो थोड़ी आपको इधर अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह कुछ देने वाला है, वो तो आपने पार्ट टाइम के लिए ऐसे ही किया है, तो वो लेकिन सैलरी तो दे रहा है ना आपको, वो भी टैक्सेबल है। अभी ये सिचुएशन में तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे क्या नॉर्मल कोर्स में बिजनेस में क्या है तुम्हारा,
नहीं कर पाएंगे हम लोग। किसको किसको पूछेंगे? अभी कितने लोग 2 काम कर रहे हैं, अपने को क्या मालूम, कोई 3 भी कर रहा होगा। फ्रीलांसर वाले तो कितना काम करते हैं भाई, सबको थोड़ी मैं पूछ पाऊंगी आप कितना काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारा ही देख लो, हमारा कैसा फ्रीलांसर्स होता है। अभी हम लोग इतनी जगह जाके ऐसे पढ़ा रहे हैं, अगर तो अभी सबसे ऐसा अगर थोड़ा थोड़ा पैसा मिल भी रहा है तो अभी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना ये मेरे नॉर्मल कोर्स में क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिक्स परमानेंट नहीं होते, फिर यहाँ पे हम लोग टेम्पररी होते हैं सब जगह, फिर ऐसा होता है। यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट क्या था? कोर्ट सर्विस बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल बिकॉज इट्स नेसेसिटी। किसी को हरासमेंट नहीं करना है, मेस क्रिएट नहीं करना है, तो आप ये कर सकते हो। फिर सर्विस बाय एमपी और एमएलए, इफ यू आर गिविंग टू सर्विस टू एमपी एमएलए तो जीएसटी लगेगा। अगर वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी नहीं लगेगा। ये फ्यूनरल ब्यूरल पे भी नहीं लग रहा है। फिर मैंने लैंड ऑफ इसका भी बताया था आफ्टर ओसीसीसी। अगर आप लोग कोई घर खरीदते हो तो उसमें क्या होता है, अगर आप लोग घर खरीद लो, अगर रेडीमेड घर लिया ना अगर आपने, तो हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे आपसे। लेकिन अगर आपने ड्यूरिंग द सर्विस, लेकिन जैसे कि घर बन रहा है और बुकिंग कर लिया आपने, तो उसमें क्या होता है, हम लोग बुकिंग करके रखते हैं ना, मेरे को 15 फ्लोर पे चाहिए, इधर वाला फ्लैट चाहिए, ऐसा कुछ हम लोग बुकिंग करके रखते हैं, तो वो सिचुएशन पे जीएसटी लगेगा। एक्शनेबल क्लेम में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अस्मिता और ये इनका आदित्य का एग्जांपल दिया था मैंने कि इनसे पैसा नहीं आ रहा है तो हम लोग को केस करना पड़ेगा, और केस करने के लिए फिर से मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। क्लियर? मतलब ऐसा किसी को अगर आप पैसा वगैरह दे देते हो और कुछ पैसे नहीं आ पा रहे, क्लेम नहीं हो पा रहा, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए आपको फिर कोर्ट जाना पड़ेगा। सो कोर्ट इज एन एक्सक्लूडेड कोर्ट फ्रॉम। जाना पड़ेगा। ठीक है, बेसिक नेसेसिटी है ये सब, तो इसके लिए ये सब सोच के हम लोगों ने एक्सक्लूड में रखा हुआ। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम लोग को जो देखना था, मैंने आपको बोला था मेरा एक पॉइंट बाकी है आपको पढ़ाना, दैट इज सप्लाई एक्सक्लूड के अंदर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो विद कंसिडरेशन का सेकंड पार्ट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए, जरा देख लो। इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर है तो आपको चेक करना है वेदर फॉर कंसिडरेशन है या विदाउट कंसिडरेशन है। सी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए ना आप एक ही चीजें याद रखो, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करो उसको। आप बोलोगे हाँ ठीक है, आपने सर्विस लिया बाहर गाँव, मतलब बाहर से कंट्री से, जब बाहर कंट्री से कोई भी सर्विस ले रहे हो तो पूछो पैसे दिए क्या उसको। अगर वो बोल रहे हैं हाँ फॉर अ कंसिडरेशन है, तो पूछो बिजनेस के लिए था या नॉट बिजनेस के लिए, तो वो बोलेगा बिजनेस के लिए। या एक जन बोल सकता है नहीं बिजनेस के लिए नहीं है, तो हमको उसका लेना देना ही नहीं है, आपको टैक्स लगेगा। इसको सप्लाई बोलने का, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मीन्स अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, सर्विस अगर आप आउट ऑफ कंट्री से ले रहे हो और अगर आपने उसको पैसे दिए, मतलब फॉर अ कंसिडरेशन हुआ, दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे हम लोग सप्लाई बोलेंगे और उसको जिस पर जीएसटी लगेगा। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे आपका फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है या नॉट फर्दरनेस ऑफ बिजनेस है, ये हमको नहीं देखना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? मतलब इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए अगर पहला क्वेश्चन करो फॉर अ कंसिडरेशन है, मतलब जीएसटी लगेगा। फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, नॉन फर्दरनेस ऑफ बिजनेस भूल जाओ। फॉर अ कंसिडरेशन है इंपोर्ट ऑफ सर्विस में जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है, मतलब आप बोल रहे हो आपने सर्विस लिया आउट ऑफ कंट्री से लेकिन आपने उसको पैसे नहीं दिए, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा यहाँ पे क्या वो बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन था क्या। मतलब अगर आपने जिससे सर्विस लिया, क्या वो आपके पहचान वाला था क्या, या उसका कोई भी रिलेटेड वाला इंडिया में है क्या। जैसे कि अगर आपने क्या बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल से अगर आपने कुछ सर्विस लेने के लिए गए, इंडिया में ही लिया आपने, आपको आउट ऑफ से कुछ लेना देना नहीं है, आपने इंडिया से ही सर्विस लेना चाहा, आप गए लेने के लिए, बट वो एक पहचान वाला था, उसने क्या बोला, मैं आपको सर्विस देता हूँ लेकिन आपको जीएसटी लगेगा। तो एक काम करो ना, आप क्या करो, मेरा भाई है आउट ऑफ में, अमेरिका में मेरा भाई है, आप उससे सर्विस ले लो, सेम है उसका भी बिजनेस, वो तो आपको जीएसटी नहीं पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, यहाँ पे रूल बनाया है, अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस करते हो, वो भी विदाउट कंसिडरेशन है, तुम्हारे पहचान वाला है, रिलेटेड पर्सन है वो भी, और तुम बिजनेस कर रहे हो, जैसे मैंने ये वाले सिचुएशन में मैंने आपको सैलून का एग्जांपल दिया था कि मेरे फ्रेंड से ले रही हूँ, पैसे नहीं दे रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा बिजनेस है, बोल के जीएसटी बोलने का, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, इट्स सप्लाई एंड गवर्नमेंट विल चार्ज यू जीएसटी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि विदाउट कंसिडरेशन आपने सर्विस लिया है बाहर से और वो दूसरा कोई केस है,
मतलब बिजनेस वगैरह नहीं कर रहे हो, अपने पर्सनल पर्पज के लिए लिया है, तो उसको जीएसटी नहीं बोलने का, उसके ऊपर सप्लाई नहीं लगेगा, सप्लाई नहीं बोलने का और जीएसटी नहीं लगेगा। ये आपको टोटली इंपोर्ट ऑफ चार्ज आपका माइंड में बैठाने का है। मतलब इन शॉर्ट आप याद कैसे रख सकते हो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि हाँ इंपोर्ट ऑफ सर्विस ना, पैसे दिए क्या, हाँ दिए पैसे, तो बिजनेस है या नहीं उससे चेक करने की जरूरत नहीं है, इसको पैसे दिए मतलब जीएसटी भी देना है साथ में, समझ लो। पैसे आपके इधर से गए मतलब जीएसटी भी जाएगा, बिजनेस से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो पैसे नहीं दिए, तो पैसे नहीं दिए तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि आपने बिजनेस के लिए लिया था सर्विस या अपने पर्सनल के लिए लिया है। बिजनेस के लिए लिया है, वो भी रिलेटेड वाले से लिया है, जीएसटी लगेगा। अदर कोई केस है, मतलब आपने रिलेटिव वाले से भी ले रहे हो या कोई भी केस होगा अगर आपका विदाउट कंसिडरेशन, तो हम लोग जीएसटी नहीं लगाएंगे क्योंकि आपने पैसे दिए ही नहीं है, तो जीएसटी भी लगेगा नहीं। ये क्लियर होगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला चार्ट? नहीं। तो सी Yes. अगर आपके पास वहां पे जगह नहीं होगा ना, वो आपके चार्ट में किसी किसी के बुक में जगह हो सकता है, शायद वहां पे जगह था इनके पास, प्राजक्ता ने जो बनाया था वहां पे जगह था उनके पास, तो वो बना सकते हैं। बाकी लोग के पास नहीं है तो आप लोग अलग से भी बना सकते हो, टेंशन मत लो। ओके, क्लियर हो गया सबको ना ये पॉइंट? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोग ने नया सीखा आज इंपोर्ट ऑफ सर्विस वाला। उसके बाद फिर हम लोग ये वन नाइट स्टे का देख रहे थे। जो वन नाइट स्टे के लिए अगर आप जाते हो तो आपको ब्रेकफास्ट देते हैं। अब ऐसा सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए तो नहीं जा रहे हम लोग वहां पे, हम लोग स्टे के लिए जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट साथ में आ ही रहा है, मुझे नहीं चाहिए तो भी आ रहा है, दैट इज कंपोजिट सप्लाई। मतलब जो आपको नेचुरली बंडल है वो उसके साथ आने वाला ही है, वो हम लोग ने देखा था, वो कंपोजिट सप्लाई। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, तो पर्सन इज लाइक वो फ्लाइट में है, तो फ्लाइट में है तो उसको जूस आया, फिर थोड़े टाइम के बाद उसको फिर पूछा कुछ लोगे क्या सर आप खाने में, तो मील वगैरह भी दिया। तो ये सिचुएशन में क्या है, फ्लाइट में जा रहे हो तो ये सब चीजें आ ही रहा है साथ में, तो ये भी मेरा कंपोजिट सप्लाई का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? मतलब ऐसा कोई चीज जो आप कुछ खरीदने जा रहे हो और वो उसके साथ आ ही रहा है, मतलब आप नहीं लेना चाहते हो फिर भी आपको साथ में आ रहा है, मतलब उसी पैसे के अंदर, तो आप क्या करोगे, वो कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। क्लियर हो गया ये? फिर आप जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपका फ्रेंड है तो आप वॉच खरीदने के लिए गए गिफ्ट के लिए, तो जैसे आप गिफ्ट के लिए जा रहे हो वॉच खरीदने के लिए, तो उसने आपको एक बंच बना के दिया पूरा बंडल, सर आप ये लोगे तो इतने में पड़ेगा, फिर ये लोगे तो आपको इतने में पड़ेगा। तो आपने सोचा हाँ यार 10-20 ज्यादा देके मुझे अगर 3-4 चीज ज्यादा मिल रही है तो वही लेना ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं टाई अलग से खरीद सकती हूँ, वॉलेट अलग से खरीद सकती हूँ, पेन अलग से खरीद सकती हूँ, लेकिन इसके पहले वाले एग्जाम्पल में मैं फ्लाइट का खाना अलग से खरीद सकती हूँ क्या? नहीं। नहीं। होटल में जो आप अकोमोडेशन के लिए जा रहे हो वहां पे जो ब्रेकफास्ट मिल रहा है वो अलग से ले सकते हो आप? नहीं ले सकते, क्योंकि आप वहां पे होटल के लिए नहीं गए हो, आप लोग मोटल के लिए गए हो, मतलब वहां पे रहने के लिए गए हो आप। देयर इज अ टू डिफरेंट थिंग, होटल एंड मोटल। रहने के लिए गए तो वो मोटल, एक खाने के लिए अपन होटल में जाते हो नॉर्मल होटल मेरा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो ये सब चीजें मैं अलग से खरीद सकती हूँ, दैट इज मिक्स सप्लाई। ये मेरे को चिटकाया जा रहा है, नहीं चाहिए तो भी जबरदस्ती। फिर नेक्स्ट चीज मैंने आपको एग्जांपल दिया था बर्थडे के लिए, बर्थडे शॉप में गए तो वो गिफ्ट भी आपको साथ में केक दे, एंड अरे गिफ्ट तो हम लोग अलग से भी खरीद सकते हैं, ये साथ में क्यों दे रहे हैं? तो हमारा वो हो गया मिक्स सप्लाई, अलग से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज है, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट इज कंसिस्ट ऑफ टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स नेचुरली बंडल जो आपको साथ में आएगा ही। फिर कंपोजिट सप्लाई अगर आपको पता चला तो आप टैक्स किस पे करोगे? प्रिंसिपल सप्लाई, दैट इज मेन सप्लाई। आपका मेन क्या था, जैसे मेरा फ्लाइट मेन है, अकोमोडेशन में होटल लाइक मोटल जो आप रह रहे हो वो रूम मेन है, ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वो सब चीज पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, जो मेरा प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा। फिर यहाँ पे हम लोग ने मिक्स सप्लाई देखा, मिक्स में क्या हो रहा है, लेकिन ये नेचुरली बंडल नहीं होता है, ये हम लोग अलग से भी खरीद सकते हैं, इंडिविजुअली अलग से इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, बट ये लोग साथ में हम लोग को बेच रहे हैं, सो दैट इज मिक्स सप्लाई। तो यहाँ पे जो भी आपने प्रोडक्ट मिक्स में लिया है उसका रेट ज्यादा होगा, उसके ऊपर हम लोग जीएसटी अप्लाई करेंगे। क्लियर हो गया ये? यस। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे कि ये केक है, केक के साथ आपको नाइफ आ रहा है प्लस आपको एक कैंडल आ रहा है, सो कौन सा एग्जांपल है ये? कैंडल्स। composite. यस, दिस इज द कंपोजिट सप्लाई।
सी इट मे बी लाइक मिक्स सप्लाई ऑल्सो, क्योंकि कोई कोई शॉप में क्या होता है, ये आपको अलग से बाय करना पड़ता है। हम लोग खरीद सकते हैं ये शेयर अलग करना। से भी बाय, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में देखोगे तो सब साथ में आना ही चाहिए। ये मेरा कंपोजिट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज, अगर आप केक के लिए जा रहे हो वो आपको कोक भी दे रहा है साथ में, तो ये क्या हो गया, ये मिक्स। मेरा मिक्स सप्लाई हो गया, बिकॉज कोक हम लोग अलग से भी ले सकते हैं यार। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि टोटल 29 स्टेट्स वगैरह है। इसके बाद ये यूनियन टेरिटरीज है जिसमें 2 ऐड हो गए हैं। कौन से? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये दोनों इसमें लद्दाख। हाँ, ये 2 यूनियन टेरिटरी इसमें ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम लोग के पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप जीएसटी के अंदर रेगुलर के लिए जा सकते हो, या यू कैन गो फॉर कंपोजिशन। ये आपके ऑप्शन के ऊपर, लाइक आपको Composition. सिलेक्ट करना है कि कौन सा आपको लेना है। तो हम लोग फिलहाल रेगुलर बाद में पढ़ेंगे, जो तो पढ़ना ही है हमको। कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन मतलब क्या, व्हाट इज कंपोजिशन एंड क्यों। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंपल एंड इजी स्कीम। ये बहुत सिंपल है, इजी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये लॉ क्यों बनाया है लाइक गवर्नमेंट ने, तो ये स्मॉल डीलर के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए है, ये उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का किसी ना किसी का अगर फायदा है ना, तो नुकसान भी है। तो अभी यहाँ पे कैसा है, जैसे आप देख सकते हो, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कंप्लायंस। ये अच्छी बात है कि मुझे यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है मेंटेन करना है डेली का, वो कम मेंटेन करना पड़ेगा। रिटर्न्स जो फाइल करना है मुझे, नॉर्मली आप जीएसटी जैसे जैसे आप इनकम अर्न करोगे वैसे वैसे आपको रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे। देखेंगे हम लोग क्या होता है, पर उसके नंबर्स ऑफ लेस हो जाते हैं, कम भरना पड़ेगा एज ए कम्पेयर टू रेगुलर डीलर से। फिर हम लोग ने यहाँ पे देखा था ये सब चीजें, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगर किसके लिए एप्लीकेबल है, ये सब हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस है, अगर मेरा प्रीवियस ईयर में बोल रही हूँ, मेरा लास्ट फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर आप बोल सकते हो, कि अगर उसका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अगर लेस देन 50 लाख है सर्विस का, अगर आपने लेस देन 50 लाख के अंदर अगर आपने सर्विस दिया है किसी को, तो यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। लेस देन 50 लाख है तो। लेकिन रेस्टोरेंट सर्विस यहाँ पे नहीं आएगा। नॉर्मली रेस्टोरेंट रहेगा तो आएगा, लेकिन रेस्टोरेंट में अल्कोहल रहेगा तो नहीं आएगा। क्लियर हो गया। और रेस्टोरेंट विद अल्कोहल भी होता है ना वहाँ पे, ये होता है ना रेस्टोरेंट एंड बार, वो यहाँ पे नहीं आएगा। नॉर्मल रेस्टोरेंट रहेगा तो आएगा। एंड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, अगर आप लोग कोई आप लोग सेल कर रहे हो टैक्सेबल गुड्स का, आप बिजनेसमैन हो, आप लोग टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हो, आप लोग कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। लेकिन आप जैसे कि नॉन टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हो जिसमें अल्कोहल वगैरह, एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, जैसे कि अल्कोहल है, अगर आप ऐसे सब बेच रहे हो, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। क्लियर हो गया ये। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो भी है, बिजनेस का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सेम स्टेट से है, मतलब आपने कभी बाहर के बाहर के स्टेट में कभी ट्रांजेक्शन किया ही नहीं, आप सेम स्टेट के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जिसको इंट्रा स्टेट बोला गया है, सो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। इंटर स्टेट सप्लाई जो है वो नहीं होगा यहाँ पे, अलाउ नहीं है। अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते। जैसे कि आप मुंबई में हो और आपने आपका जो बिजनेस कर रहे हो, सेल आप जो कर रहे हो वो गुजरात में कर रहे हो, आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते क्योंकि स्टेट चेंज हुआ। फिर आप लोग अगर सप्लाई कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, जैसे ई कॉमर्स, मैंने इको लिखा है वहाँ पे, दैट इज ई कॉमर्स। वो ऑनलाइन जो फिलिप का वो था, मतलब अमेजोन वगैरह जो होता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन। हाँ वो सब। तो अगर वैसा सब कुछ पे अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हो आपका, तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब, नाम सुना है कभी आपने? कैजुअल इनकम पता है आप लोगों को? नो। डीटी हो गया कि नहीं आप लोगों का? इनकम टैक्स हाँ हाँ, डायरेक्ट टैक्स हो गया ना आप लोग का, तो उसमें पढ़ा रहेगा ना इधर इनकम तो। पे ना डायरेक्ट। नहीं नहीं नहीं, मैं कैजुअल इनकम की बात कर रही हूँ। आपने डायरेक्ट टैक्स में पूरे पोर्शन में किधर कैजुअल इनकम सुना कि नहीं? हम लोगों का नहीं हुआ है मैम क्या बोल रहे हो? डीटी। हम लोगों का डीटी नहीं हुआ है, मतलब ओके मेरा नहीं हुआ है। ओके ठीक है, चलेगा।
जिन लोग का हो गया उन लोग को भी नहीं पता है वैसे तो। चलो ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। से कैजुअल इनकम मतलब जो आपने कैजुअली कमा लिया होगा, ऐसे ही कमा लिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल से अगर बात करेंगे, जैसे कि अभी सब कुछ बंद है, जैसे कि अभी सब बंद ही है। आप लोग फॉर एग्जांपल से अगर ले लो कि कोई पर्सन है। लॉटरी से पैसा आता है वैसे मैम, हाँ कैजुअल हाँ, इनकम। वैसे ही जी। कैजुअल इनकम इज लाइक कैसा, आपने कुछ कुछ नहीं किया तो भी पैसे कमा लिए, जैसे कि लॉटरी वगैरह हो जाता है, हॉर्स रेस वगैरह हो जाता है, वैसा कुछ रहेगा वो मेरा गेमलिंग। कैजुअल इनकम। विल कनेक्ट इन सम टाइम ना, अभी बंद होने वाला है वैसे भी, सब लोग